Yes, very good morning to everyone. Today we revise good above series justified, inactive and reactive. Not only occurrences but report also. And I'll try to give two more new insights. How to capture more than 5%. And secondly, how to know when it is trading with inactive and approaches nearer to kilo, if the kilo will be traded or not. When good above series is inactive, master trades on lower side and approaches nearer to kilo. How to know whether kilo will be traded on lower side or it will become reactive. The same way week below series justified, inactive, approaches key high. How to know if the key high will be traded on higher side or it will become reactive. So if I can explain that and if you can capture that, the journey will be, the reward will be more than 5%. But to begin with, the simple what we have learned, what we are practicing, what we have adopted, let us revise in few minutes. Let me go to the old version, the new report known as RR reactive. What different, how different this report is from the old report. There's two things. One is advancing and declining, that is trending RR and non-trending RR. Secondly, main thing, good above series inactive. Only those inactive has been filtered here. Where good above series is justified and kilo is not traded. In earlier report, every inactive, we were forced to check if the previous occurrence is good above series justified and also kilo is intact or not. This we need not bother now. Say for example, Hindustan Lever, HDFC and Infosys. Hindustan Lever, gas inactive has occurred. I will try to explain these columns also.
Good above series is inactive on 29th April 2020. Then by default, previous occurrence good above series justify होगा ही होगा. पहले हम चेक करते थे प्रीवियस occurrence good above series justified है या नहीं है. अब वो चेक करने की जरूरत नहीं है. Secondly, we were forced to check if the kilo 1757.30 is intact or not. जब inactive हुआ तभी. So after good above series justified, 1757 is not traded on lower side. So kilo is also intact. इसलिए good above series inactive जो है ये tradable है. पहले earlier these two conditions we are forced to check. अब वो जरूरत नहीं है. Second is HDFC. Good above series inactive has occurred. तो by default previous occurrence जो है वो good above series justified है. And इसका जो kilo है 1569.10 is not traded on lower side जब ये inactive हुआ तभी. तो अब वो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो फिल्टर होके ही आ रहा है. एक और केस स्टडी इंफोसिस. Good above series inactive has occurred and by default previous occurrence good above series justified है. इसका किलो 603 मतलब ये good above series justify होकर 603 के नीचे कभी गया ही नहीं है. So that is also filter. Now second thing, the execution strategy for trading good above series justified and good above series reactive is same, ditto, same. I'll go through the notes जो मैंने आपको पहले दी हुई है. उसमें कंडीशन 1 है PCS or PCDS should not have traded on lower side. Second, allow it to retrace till PCS or PCDS which should not have traded on lower side. Third is lower band not traded or no fresh resistance in FC. ये तीनों कंडीशन में से ये तीनों कंडीशन इंटैक्ट रहना चाहिए. PCS PCDS ट्रेड नहीं किया हुआ रहना चाहिए. लोअर बैंड should not have traded on lower side and PCS PCDS तक एक बार रिट्रेस हो जावे गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होकर रिट्रेस हो जावे या गुड अबव सीरीज रिएक्टिव होकर एक बार रिट्रेस हो जावे. देन जब भी पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय
या पीसीआर हायर से ट्रेड करे, यानी कि फॉलो बाइंग अकर हो तो हम बाइंग करेंगे, एंड दिस विल ऑफर 5% प्लस। इसमें भी गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होकर, आई एम एडिंग वन मोर पॉइंट, हरू भरू हमने ऑन एंड ऑफ वेबिनार में ये बात ली हुई है, बट वो क्वेरीज में वो बात हमने कवर की है। आज हम लर्निंग कॉन्सेप्ट में ही उसको कवर कर लेते हैं फिर से। गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होकर या इनएक्टिव होकर या रिएक्टिव होकर, which script will sustain the rising price or falling price, when it will continue to rise further। ये तीन स्क्रिप्ट है एडवांसिंग में, तो इसमें भी तीनों में सेफ कौन सा है? उसी तरह से डिक्लाइनिंग में भी जाएंगे, तो ये नॉन ट्रेंडिंग आरएआर में गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हम बाई करेंगे, बट जो ट्रेडर है 5% के लिए ट्रेड करते हैं, उनको एडवांसिंग में से गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड मिले या डिक्लाइनिंग में से मिले, कोई लेना, कोई देयर इज नो डिफरेंस अबाउट इट। जो पोजिशनल ट्रेडर है, पैसिव ट्रेडर है, उनके लिए कभी ट्रेंडिंग आरएआर, नॉन ट्रेंडिंग आरएआर अलग से सीखेंगे, तो फॉर देम इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। Again, I'll go to those three scripts. जो अपने को ओल्ड वर्जन में से मिल रही है, क्या होगा? तो it is coming 9 reports, ठीक है। Where is that Hindustan Lever and all? ठीक है ना? Let us understand the concept, historical पे भी कैसे स्टडी करना ये हम देखते हैं, but where is those three scripts? ठीक है, let us go by this। मेरिको, अच्छा वो इनएक्टिव थी, दिस इज जस्टिफाइड, करेक्ट ही है। हो सके तो आप यहाँ से देखना चालू करें। मेरिको फर्स्ट टाइम बाइंग आई है, गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड फर्स्ट टाइम हुआ है 14 मई 2020 को, अभी अभी बाइंग आई है। और इसके पहले जो था वो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड था, डार्क रेड था, और ऐसे 27 मार्च से भी गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड है। जब भी हम किसी स्क्रिप्ट में ट्रेड लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो कहाँ से गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई अकर हुआ, बाइंग करते हैं, तो वो थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए। ऐसा देख के करेंगे तो हम धीरे धीरे 5% से और ज्यादा ट्रेड ले पाएंगे, मोर रिवार्डिंग, एज वेल एज हम आरएआर पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में शिफ्ट हो पाएंगे। यह 27 मार्च से गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होकर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। तो दिस क्लियरली सजेस्ट कि बाइंग आकर, फर्स्ट टाइम बाइंग आकर स्टॉप एंड यूज टू सेल होना, मतलब अब ये जब
283.55 हायर से ट्रेड करेगा तो ही फॉलो बाइंग आएगी, अदरवाइज यहाँ पे हमको 251 तक रिट्रेसमेंट विल अकर एंड ये 251 तक यहाँ पे आ रहा है। 283.55 हायर से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 283.55 हायर से ट्रेड नहीं किया, तो वहां से एक बार वापस इस दिन का PCDS 250 था, लो 251 है, WDP 252 है, वहां तक कहीं ये रिट्रेस हुआ, तो एक गुडेबल सीरीज जस्टिफाई हुई, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, इसके लिए करेक्शन सेल ही है, गुडेबल सीरीज जस्टिफाइड अकर तो मानेंगे ही मानेंगे। जब तक PCDS ट्रेड नहीं करता है 250-20 एंड ये रिट्रेस होकर देन 283.95 आकर जब उसने 283.55 हायर से ट्रेड किया 8/4 को, 283.55 का फ्रेश सपोर्ट, 283.55 नेक्स्ट लेवल वाज 293, ये जब ट्रेड किया तो वापस यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो अगेन हम कहेंगे कि फॉलो बाइंग आई तो सही लेकिन सस्टेन नहीं हुई क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। जो फॉलो बाइंग आकर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विच गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई विल सस्टेन, जिसमें फॉलो बाइंग आकर पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद हुआ हो वो सस्टेन होगा, बाकी सब भी बाइंग है लेकिन वो बार बार रिट्रेस होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 8 अप्रैल को 283.55 की जो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय था वो हायर से ट्रेड किया भी लेकिन स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, इट मींस फॉलो बाइंग आकर भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होना means it will again retrace either till PCDS और WDP एंड फिर जब ये 311.5 पैसा हायर से ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा। Here again 15 अप्रैल को इट इज कमिंग अप टू 3, यहाँ पे 285 तक रिट्रेस हुआ बट 311.05 हायर से ट्रेड नहीं कर पा रहा है एंड वंस अगेन स्टॉप एंड यूज टू सेल, तो ये मेरी को बाइंग में आने के बाद भी फॉलो बाइंग नहीं आ रही है और फॉलो बाइंग आ रही है तो सस्टेन नहीं हो रही है, तो बार रिट्रेसमेंट पे माल मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो 283 तक आकर रिट्रेसमेंट में 250 के पास रिट्रेस हुआ, वहां पे अपने को बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, फिर से 284 तक बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, अगेन स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, यहाँ पे 291 तक हमको बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सजेस्टिंग टू ट्रेड दिस वे, लेकिन जो समझते हैं कि हाँ गुड सीरीज जस्टिफाइड है और स्टॉप एंड यूज टू सेल है इज नथिंग बट करेक्शन सेल, और उस करेक्शन सेल में जहां भी PCDS के पास या लो के पास या WTP के पास माल मिलता है तो एक बार लो जितनी बार होता है उतनी बार लो और वापस जहां पे फॉलो बाइंग आने का भाव है 311 327 वहां पे एक बार स्क्वायर ऑफ कर दो, तो दिस विल आल्सो गिव यू कंसिस्टेंटली 55555%। लेकिन ये थोड़ा जो हम इसको बहुत सिंप्लीफाई बहुत इजी बहुत इफेक्टिव करना चाहते हैं उसमें ये बात नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ इतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुड सीरीज जस्टिफाई होके अब तक फॉलो बाइंग आई नहीं है मेरे को में, अब 327 के ऊपर ही फॉलो बाइंग आएगी, तो आज तक
फिर से स्टॉप एंड यूज टू सेल 304, 297 से स्टॉप एंड यूज टू सेल, 300 से स्टॉप एंड यूज टू सेल, एंड दैट 327 को चलो छोड़ दो, तो भी 305 जो है वो हायर से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, एंड इसके लिए फॉलोअप बाइंग नहीं आ पा रही है, तो नहीं बढ़ पा रहा है। बट फिर से यहाँ पे देखो 304 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, तो इसका लो WDP और PCDA सब 287 था, एंड वो 287 तक आकर यहाँ से फिर से स्टॉप एंड यूज टू बाय होना, मतलब इट इज नॉट एबल टू स्टॉप एंड यूज टू सेल, इन एक्शन भी नहीं आ रहा है। अभी तक वो गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड में है, बार बार गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होकर अगेन एंड अगेन PCS के पास आना, PCDS के पास आना, WDP के पास आना is nothing but correction sale, it is nothing but accumulation। और हर PCDS के पास, हर WDP के पास एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां से जहां से उसको फॉलो बाइंग आना चाहिए 304 से, तो वहां तक एक बार वो आता है। ये हमने देखा। हर स्क्रिप्ट में आपको इस तरह से देखना होगा। ये ट्रेड अगर हमको अडॉप्ट करना हो ये सिनेरियो, तो दिस इज हाउ, बट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी तक यहाँ पे फॉलो बाइंग आई नहीं है। यहाँ पे फिर से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, तो उसका लो WDP PCDS फिर वहां पे 297 आया। आप देख रहे हो, ये तो अंदाज से मेरी को ले लिया। तो हर बार सिखाना तो मुझे सिंपल ट्रेड, बट पूरा रिट्रेसमेंट का ट्रेड यहाँ पे आ रहा है। बट बाइंग आएगी 327 के ऊपर, फॉलो बाइंग जिसको कहते हैं, वो 327 के ऊपर आएगी। तो हमको अगर ये समझ में आ रहा हो कि बार बार स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर नो लो, नो WDP, नो PCDS लोअर से ट्रेड कर रहा है उस दिन का, इसका मतलब बाजार कम से कम 327 की तो जर्नी है, एंड 327 जब ट्रेड करेगा हायर साइड तो 5% और देगा। तो इस तरह से ये 327 तक आ रहा है। एंड एक बार भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर इसने लो WDP या PCDS सो फार एक बार भी ट्रेड नहीं किया है, दैट सजेस्ट कि इसको 327 हायर से ट्रेड करना है। ये हो गया थोड़ा समझ के करने वाली बात, जो हम आजकल कम प्रिफर करते हैं कि भाई सीधा सीधा ट्रेड हो, 5% मिलता हो वो ले। बाकी मैं समझा भी देता हूँ, जो लोग समझ जाते हैं, कोई प्रैक्टिस करने से समझ आ ही जाता है। बट सीधा सीधा ट्रेड जो है मेरिको में, एक्सट्रैक्टेड एसेंस ऑफ लॉट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन लास्ट 10 मिनट्स इज कि जो जिसको एकदम सिंपल इजी ट्रेड लेना है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि गुड वो सीरीज जस्टिफाई हुआ यहाँ पर, यस, लेकिन फॉलो बाइंग नहीं आई। यहाँ पे फिर आज गुड वो सीरीज जस्टिफाई हुआ है, तो इसकी फॉलो बाइंग जो है 325-65 हायर से ट्रेड करेगा, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, और पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद हो गया तो हम होल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे जस्टिफाई होने के बाद में एक बार 313 तक या 300 तक, 304 तक आना चाहिए, जो कल एक बार रिट्रेस हो गया। और अब इसको रिट्रेस होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब से गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हुआ है तो टूट के ही तो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग पे ट्रेड करेगा, तो रिट्रेस हो नहीं हो चलेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट ही है था अब तक। ये रिट्रेसमेंट इज नथिंग बट करेक्शन सेल, नथिंग बट अक्यूमुलेशन। तो कल मेरी को आने वाले दिनों में 325-65 हायर से ट्रेड करेगा, तो ही फॉलो बाइंग आएगी, और फॉलो बाइंग आने के बाद वो PCS से बंद होता है, तो वहां से अपने को 5% 325-65 का नेक्स्ट लेवल जो है 329.15 ये ट्रेड करेगा, तो हम कहेंगे फॉलो बाइंग आई।
और सपोर्ट से बंद हुआ तो हम कहेंगे हाँ फॉलो बाइंग आकर सस्टेन भी हुआ एंड फ्रॉम 329.15 5% वी कैन प्रोजेक्ट। ये हुआ एकदम सीधा साधा सिंपल इजी इफेक्टिव ट्रेड। दूसरा है कि अगर हमको ऐसा फील आता हो कि यार ये गुड सीरीज 65 टू 53 में हुआ था और तो 329 में इसमें फॉलो बाइंग आ गए तो 250 का 330 हो गया यार। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, फॉलो बाइंग आ जाती है, बट इसमें अब तक फॉलो बाइंग नहीं आई। तो उन लोगों को इस तरह से ऑन एवरी रिट्रेसमेंट बाइंग करना सीखना होगा और रिट्रेसमेंट होकर जहां से फॉलो बाइंग आने का जो लेवल है वहां पे एक बार स्क्वायर ऑफ करना होगा। जैसे यहाँ पे फॉलो बाइंग का लेवल 283 था तो वहां पे स्क्वायर ऑफ कर लो। यहाँ पे फॉलो बाइंग का लेवल 311 था तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लो। यहाँ पे फॉलो बाइंग का लेवल 327 है तो ये 293 से 311 327 में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से फॉलो बाइंग का लेवल 304 था, ये तीनों को देखे तो 304 में स्क्वायर ऑफ कर लो। यहाँ पे अब ये 304 6 सब जो हायर से ट्रेड कर चुका है। अब ये कुडबो सीरीज जस्टिफाइड में हाईएस्ट लेवल 327 है। यहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय 326 है तो दोनों का नेक्स्ट लेवल 329 ही है। वो हायर से ट्रेड करे तो वो सिंपल हो गया, बट नथिंग टू वरी, हमेशा इस तरह से लेट बाइंग नहीं आती है। एक और हम लेते हैं एसआरएफ। एसआरएफ 19 नवंबर 2018 को पहली बार बुल के घर में आया था और गुड वो सीरीज जस्टिफाई होकर आया था और इसका अकरेंस डेट है 19 नवंबर 2018 2083 में। तो ये हम इस तरह से कॉलम्स को गो थ्रू कर सकते हैं कि एसआरएफ गुड वो सीरीज जस्टिफाई होके 2083 में बाइंग आकर आज 3600 रुपया है करंट क्लोज। तो मैं सिर्फ खाली हाईलाइट कर रहा हूँ ये कैसे, इसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी कोई सिखा नहीं सकते हैं हमको, बस बाइंग में है तो हर बार प्रॉफिट बुक करके वापस बाइंग करना, रीइनिशिएशन आना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाए हैं। वी आर जस्ट लर्निंग सिंपल सिंपल ट्रेड्स। और जब पहली बार बाइंग में आया था तो उसका मास्टर है 1867 था और किलो 1684 था। तो 19 नवंबर से आज तक वो किलो के नीचे नहीं गया होगा। तो उसकी अकरेंस हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो समझ में आएगा कि 19 नवंबर से कैसे ट्रेड किया है ट्रेडेड। एक बार गुड सीरीज जस्टिफाई हुआ तो 5% का ट्रेड मिला होगा। यहाँ पे गुड सीरीज जस्टिफाई हुआ तो यहाँ 5% का ट्रेड मिला होगा। यहाँ रिएक्टिव, यहाँ गुड सीरीज जस्टिफाइड, यहाँ गुड सीरीज जस्टिफाइड, गुड सीरीज जस्टिफाइड, रिएक्टिव, जस्टिफाइड। यहाँ पे वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ, यहाँ पे वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ, लेकिन ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड जो है ये जो कंडीशन है सिक्वेंशियल जस्टिफाइड नहीं होगा, यानी कि वीक ब्लू सीरीज अकर होना, फिर जस्टिफाई होना और फिर किलो ट्रेड करना, वो वाला सिक्वेंशियल नहीं होगा। तो ये नॉन ट्रेंडिंग सेल थी जो थोड़ी बहुत टूटी होगी, बट नॉन ट्रेंडिंग सेल थी। एंड ये ट्रेंडिंग ही था आरएआर एसआरएफ, और ये वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई से घबराने की जरूरत नहीं थी। कौन से वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाइड इफेक्टिव है, कौन से नहीं है। अगर वो डार्क रेड है तो इफेक्टिव है। डार्क रेड कैसे आया, मैंने एक बार रिसर्च टीम में समझाया था अलग से, बट ठीक है। तो यहाँ पे फिर बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुई, बट दिस वाज टू बी इग्नोर्ड। लेकिन इस तरह से ये 2000 से 3600 हुआ है। दिस समटाइम लेटर जिसको सीखना हो ये हम लेंगे। आई एम नॉट एबल टू, ये स्टक हो गया मेरा वेबिनार। यहाँ पे ना मैं म्यूट अनम्यूट कर पा रहा हूँ, ना मिनिमाइज कर पा रहा हूँ।
1 second. It is not working. One minute, give me 1 minute. ये स्टक हो गया वेबिनार मैं कोई भी फंक्शन फीचर्स यूज नहीं कर पा रहा हूँ राजेश तुम सिर्फ एक जन मुझे मैसेज भेजो ना एम आई ऑडिबल और नॉट क्योंकि मैं कुछ भी म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ एकदम स्टक हो गया है इज एवरीथिंग क्लियर कोई क्वेरी नहीं ले पाऊंगा किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा लेट मी आस्क यू दिस इज स्टक हाउ टू clear this I'm not able to operate any feature just check Stuck to use your laptop. लैपटॉप हैंग થઈ ગયું કે વેબિનાર Webinar. so what to do now हैंग થઈ ગયું છે તો મને બી સમજાય છે do you know anything how can we resolve Reschedule करना. Reschedule तुमने जुए चाह. I will have to reschedule the webinar it seems क्योंकि कुछ भी फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है इतना बढ़िया चल रहा था विदाउट यू नो मस्त इंटरेस्टिंग बट मैं फ्रेश लिंक ऑर्गेनाइज करता हूँ but until we don't cancel this no fresh link also it will not allow to organize You can close it. no, we are not able to close also Restart it. Now restart. reload or press F5 sir somebody is asking reload or press F5 F5 Not reloading, it's not working at all. All you will. It's hanged. ठीक है audio is working many messages are there ठीक है I'll restart the laptop and we'll organize new one first end the webinar You can't. Wait. Take 45 ना